So hey, hi all, welcome to my YouTube channel Bitverse. So today I'll be solving a problem on the linked list. The problem statement is odd even linked list. So going ahead, we'll be solving problems on the Geek for Geeks also. We have code forces too. So I'll take up now for lead code basically. So it's an odd even linked list. The problem statement is that we will be given a head of a linked list, and we need to sort it out. Sort it out in the sense that the odd would be connected to the row and the even would be connected in a together way, and then we need to connect both of them. So if you see here, right, 1 and 3 and 5 are connected together, and then 2 and 4 is connected, and then we have to connect 5 and 2 again. So basically the start of the event, right, from where the even node is starting, we need to connect it back to the odd one. So that is the end result that we need to give it. And they have mentioned some time constraints and space constraints. If you see, right, the time complexity is your O of n, and the space complexity is O of 1. So they want us to solve us the problem in an in-place algorithm, that is, they use the same linked list and don't change it. And the other is that we need to use the O of n time complexity. So one single sort approach, that is one single traversal, is what being allowed to do that. So let's discuss the approach first. Okay. Mm. So let's say we have 1, and then we have 2, and then we have 3, and then 4, then one more 5, and then 6, and then we have null. ठीक है. So first of all, जब भी linked list का problem हो, right, the idea over here is to, whenever you see a linked list problem, we will try the best to draw the blocks first. अगर block draw कर लेंगे तो easy रहता है problem solve करने के लिए, चाहे वो interview में भी रहा, right. Initially you must draw the blocks, right, तो you can able to connect the links. Ideally without drawing the blocks it's very difficult to understand start कहाँ से करनी है, ठीक है. So there are many ways to do this, right. You can do in a multiple way, but just because हमारे पास time constraint है, right, हमारे पास space complexity भी है. So we have some approaches that are only and only restricted for this. So what it is? So कैसे solve कर सकते? If I go with a layman approach, right? कैसे solve करेंगे? तो पकड़ लो, अगर तुम्हारे पास ये 1 है, 2 है, then 3 है, ठीक है? ये 2 है, 3 है, then 4, ठीक है? तो बेसिकली क्या है ये? बेसिकली ये है क्या? ये एक लिस्ट है, राइट? एक लिस्ट है। तो जो एक नोड होता है ना लिंक लिस्ट में, उसमें ये डेटा होता है, ठीक है? और ये होती है एड्रेस, दिस इज कॉल्ड एड्रेस। एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस कि ये किसके साथ कनेक्टेड होगा ये पता चल जाता है। फिर इसके पास ना, ये इसके पास, ये वाले के पास इसके नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा, किसके साथ कनेक्ट, इसके पास फिर नेक्स्ट वाले का रहेगा, ठीक है। ये बेसिक लिंक लिस्ट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होती है, वो ऐसे काम करती है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे, अब मैं अगर ये डेटा सेट लूँ, मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पकड़ लो, एक ऐसा है 5 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 9 है, और फिर एक कुछ और है। और एक बात यहाँ पे एक और है कि डुप्लीकेट अगर रहा, राइट, डुप्लीकेट अगर रहा तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट रहेगा, ये नहीं कि वो मर्ज हो जाएगा और एक सिंगल बना देगा। अगर 9 दो बार रहती है, 2 बार तुम्हें 9 दिखेगी तुम्हारे डेटा सेट में, ठीक है। वो भी एक अप्रोच है। वैसे वो टेस्ट केसेस है, वो बाद में बताऊंगा मैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, बट वो टेस्ट केसेस है, ये तुम्हें खुद से समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया, इसके एज केसेस क्या-क्या हो सकते हैं, जो तुम्हें ध्यान रखना होगा व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर कि इन केस देयर इज अ डेटा सेट, जैसे मल्टीपल्स हैं, तो क्या हम उसे विल इट बी कंबाइन एंड गिव अ वन वैल्यू, और या फिर वो अलग-अलग रहेंगे। सो दिस आर द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क टू द इंटरव्यूअर सो दैट यू आर क्लियर ऑन द जो अप्रोच तुम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से 5 को, ठीक है, अभी देखो ये इसके साथ कनेक्टेड है, राइट, ये कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से 5 को 4 के साथ कनेक्ट कर दूं और 8 को 2 के साथ कनेक्ट कर दूं, इसको तोड़ दूं और इसको भी तोड़ दिया मैंने, ठीक है, मैंने कनेक्शन नया बना दिया। कुछ गलत है इधर, कुछ रॉन्ग लग रहा है। बेसिकली तुम क्या किया, तुमने 5 को एक 4 के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक जगह पे तुमने 8 और 2 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तुमने अभी तक से ये किया। नेक्स्ट में जब आओगे, ये वाले के लिए जब आओगे, ये 4 और 2 के लिए जब तुम करोगे, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ये कैसे करोगे, दो अलग अलग नोड्स है, दो अलग अलग नोड से तुम ट्रैवर्स करते हो, तो क्या करते हो, 2 पॉइंटर लगा लो। तो ये इसको एक ऑड पकड़ लो, इसको एक इवन पकड़ लो, ऑड और इवन की दो दो पॉइंटर पकड़ लो। अब देखो, इवन की कनेक्शन हो गई, ऑड की भी कनेक्शन हो गई है मेरे पास, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे उन दोनों को तो इसके लिए लाना पड़ेगा ना, इस 4 और 2 के लिए। बिकॉज 5 और 8 का काम हो गया है, तो 4 और 2 के पास कैसे आएगा, ऑड को लेके आऊंगा ऑड के पास,
कि भाई तू यहाँ आ जा, और इवन को मूव कर दूंगा अपने इवन वाले डेटा के पास, ठीक है, कि वो अपने डेटा सेट पे आए। तो ऑड की हो गई, इवन की हो गई, मेरे दोनों डेटा सेट आ गई ऑड और इवन की। फिर क्या होगा, फिर से वही एल्गोरिथम जो हमने पहले लिखा था वो इसके लिए भी काम करेगा, फिर वो इसके लिए भी काम करेगा, है ना। और लास्ट में वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। कब रुकेगा, अगर देखो यहाँ पे अगर तुम सिंपल इसको पकड़ोगे, ठीक है, हर बार तुम्हें दिख रहा होगा कि इवन वाला नोड पहले है, देखो हमेशा हमेशा यहाँ भी इवन वाला पहले आएगा। तो नल पहले पहुंचने के चांसेस किसके हैं, इवन के हैं, वो पहले पहुंचेगा। ऑब्वियसली देख रहे हो ना, यहाँ पे भी इवन पहला है ऑर्डर इवन में, यहाँ पे भी ऑर्डर इवन में इवन पहला है, यहाँ पे भी ऑर्डर इवन में इवन पहला, इवन पहले पहुंचेगा, ठीक है। अब आते समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, कि मेरी कंडीशन जो एज केस होगी वो इवन पे कंट्रोल होगी, और मुझे हर एक दो दो करके मुझे ट्रैवर्स करना है पूरे लिंक लिस्ट के लिए। समझ में आया, ठीक है। अब इसकी कोड कोड कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये तो होगी अप्रोच, ठीक है। कोड करना होगा, ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ताकि समझ में आए। 2 6 7 8 9, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारी ऑड थी और ये तुम्हारी इवेंट थी, अग्री। तो कैसे करोगे इसको, ये कनेक्शन कैसे बनाओगे जो मैंने अभी ड्रॉ किया, और इसको तोड़ोगे कैसे, कैसे करोगे। अगर मैं ऑड के नेक्स्ट को इवेंट का नेक्स्ट लिखता हूँ, दैट जस्टिफाइज दिस लाइन, ये वाली लिंक को जस्टिफाई करता है क्योंकि कनेक्शन बन जाएगा। और अगर इवेंट के नेक्स्ट को इवेंट का नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ, तो वो ये कनेक्शन बना देगा, है ना, और इसको तोड़ देगा। जस्टिफाई, ये भी लाइन क्लियर कर रहा है कंसेप्ट की, जहाँ जो हमने बात करी थी लिंक तोड़ने और लिंक जोड़ने की, ये लाइन सभी कर रहे हैं, है ना। अब क्या करना था, क्या डिसाइड किया था हमने कि ऑड वाले को मूव करेंगे कहाँ, यहाँ लेके आएंगे, लाएंगे ना, और इवन को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे। तो ऑड यहाँ पे कैसे आएगा, अगर मैं ऑड इक्वल टू ऑड का नेक्स्ट करूँ तो ऑड आ जाएगा अपनी जगह पे, और अगर इवन को मैं इवन का नेक्स्ट कर दूं तो इवन वाला अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। यही लॉजिक है, कोड का लॉजिक यही है, ये इतना ही फ्रैगमेंट्स ऑफ कोड तुम्हारा लॉजिक है बेसिकली, जो तुम्हारी पूरी इटरेशन करेगी। अब तुम्हें ध्यान क्या देना है, एज केसेस पे ध्यान देना है। क्या एज केसेस, ये जो तुम कर रहे हो बार बार, ये जो इटरेशन करोगे किस कंडीशन में करोगे, एक कंडीशन में करोगे कि जो तुम्हारी इवन वाली नोड है वो नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इवन की नल होगी मतलब तुम ऑलरेडी एंड तक पहुंच गए और ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो इवन तो नल चेक कर लिए, क्या पता इवन का नेक्स्ट ही नल आ जाए। अगर इवन का नेक्स्ट नल आता है तो भी तुम्हें वहां पे रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फट जाएगा फिर। ये देखो इवन का नेक्स्ट वाला जो ये लाइन लिखे हो ये फट जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, एंड क्या कर देंगे, इवन का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो अगर ये दोनों कंडीशन रहेगा तो मेरा ये फ्रैगमेंट ऑफ कोड जो मैंने लिखा है ये एग्जीक्यूट करेगा, कुछ फटेगा नहीं। अब एंड में जब आते हैं तो क्या हो गया, ये जो पूरा जो मेरा कोड जो मैंने लिखा ये बेसिकली क्या किया, इसने 2 को 7 के साथ और 9 के साथ दे दिया, 6 को 8 के साथ दे दिया, ठीक है, इतना कर दिया। पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 9 को वापस से 6 के साथ कनेक्ट करना है। वो कहाँ पे है, वो तो कहीं कर नहीं रहे हो, राइट। तो कैसे करोगे, और देखो ये करने से लिए तुमको 6 का एड्रेस चाहिए, तुमने कहीं पे एड्रेस तो स्टोर करी नहीं है, वी आर नॉट स्टोर्ड 6 एड्रेस एनीवेयर। सो व्हाट वी डू, कि वी स्टोर 6 एड्रेस इन अ टेम्प वेरिएबल, ठीक है, एक टेम्प पॉइंटर बनाते हैं, 6 के एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो लूप एग्जीक्यूट होगा इसके बाद ऑड कहाँ पे रहेगा, ऑड अपने एंड पे रहेगा। ये पूरे लूप, ये जो हमने कोड लिखा है ये जब खत्म होगा तो ऑड कहाँ होगा, ऑड अपने एंड में होगा। इवन कहाँ होगा, इवन अपने एंड में होगा। तो तुम्हें कनेक्शन किसकी बनानी है, ऑड के नेक्स्ट के साथ कनेक्शन बनानी है, किसकी, 6 की। 6 क्या है, टेम्प है, यहाँ पे टेम्प एड्रेस स्टोर किया होगा। तो लूप के बाद मैं क्या करूंगा, लूप के बाद मैं क्या करूंगा, ऑड के नेक्स्ट को मैं बस टेम्प लगा दूंगा, हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम यहाँ से हेड को रिटर्न करते हो, हेड को तो तुमने टच नहीं किया ना, हेड तो वहीं पे है। अगर तुम हेड को रिटर्न करते हो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 2 7 9 6 8 और फिर नल। क्लियर है कंसेप्ट, समझ में आया। सो इसका कोड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। ठीक है, तो ये लीड कोड का प्रॉब्लम, सो विल सॉल्व दिस। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल राइट द बेस कोड। बेस बोले तो जहाँ पे ब्रेक होने का चांसेस है। सबसे पहले क्या है कि इफ हेड इक्वल टू नल है, ठीक है, एंड हेड नेक्स्ट इक्वल टू नल है, ठीक है। अगर ये दोनों होता है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अब वी रिटर्न द हेड इटसेल्फ, क्योंकि वी हैव अ सिंगल नोड, मतलब एक ही नोड है। अब वो चाहे ब्लैंक हो चाहे सिंगल नोड है, ठीक है, उसका ऑड इवन क्या ही करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लाइक लॉजिकली देखो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, विल क्रिएट द नोड, ठीक है, लेट्स नोड स्टार, ठीक है, लेट्स नोड स्टार एक और बनाते हैं, जो पॉइंटर का बात किया था हमने, राइट। एक और बनाएंगे और एक बनाएंगे हम लोग इवन के लिए, ठीक है। और इवन जो होगा वो क्या होगा, हेड का नेक्स्ट पे होगा इवन, ठीक है, मेरा ऑड।
और इवन हो गया। अब नाउ व्हाट विल डू, विल क्रिएट वन मोर टेम्प वेरिएबल, एक टेम्प बना लेंगे। क्यों? ये टेम्प बेसिकली क्या करेगा, ये टेम्प बेसिकली स्टोर करेगा वो इवन के स्टार्ट वाले एड्रेस को, ठीक है। तो हेड के नेक्स्ट वाला बेसिकली क्या है, मेरा इवन है, तो उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली मेरा जो कंट्रोल था, कंट्रोल के साथ इवन, इवन नॉट इक्वल टू नल हो, अगर अगर मेरा इवन अगर नल नहीं है, ठीक है, एंड इवन का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरा दोनों कंडीशन होता है, दैट मीन मैं अपना जो कोड लिखा था उस टाइम पे वो चेंज कर सकता हूँ। मतलब ऑड का नेक्स्ट इक्वल टू इवन का नेक्स्ट, वन लाइन वेर ब्रेकिंग द ऑड नोड एंड देर वी विल ब्रेक द इवन नोड, राइट। तो इवन को भी तोड़ेंगे, ठीक है, इवन का नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो ये मेरा ऑड और इवन का नोड बन गया। अब क्या, ऑड को मूव करा दो, कैसे मूव कराओगे, ऑड को बोलो कि भाई अपने नेक्स्ट पे जा, इवन को क्या बोलोगे, भाई तू अपने नेक्स्ट पे जा, ठीक है। ये करते रहेगा, कब तक करते रहेगा, जब तक मेरी इवन नल नहीं होती है, इवन का नेक्स्ट तक नल नहीं आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जब वो पहुंच जाता है एंड पे, तो मुझे कनेक्ट करना है किसके, ऑड के एंड को इवन के साथ, ठीक है। तो बस ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे रिटर्न हेड कर देनी है, बस हो गया मेरा कोड। इतनी सी कोड है, ठीक है, ये लॉजिक है। सो एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ सुनो क्या करेगा, हमारी यहाँ तो रिटर्न हेड होती है, ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 6, ओके, ठीक है, रन हो जा, क्या हो रहा है, मेरी को स्टार हेड क्या बोल रहा है, हेड 1 टू आउटपुट 135 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या गलती हो रही है। देखो यहाँ पे हेड दे रहा है 1 2 3 4 और देखो 135 आ गई है, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा गलती क्या हो, देखो कोड समझ पाओगे तो जब इसीलिए टेस्ट केस समझा करोगे, ठीक है, जब भी रन होता है ना देख पाएंगे, देखो इजीली कोड समझ में आ रहा है। 135 कनेक्ट हुआ, 2 और 4 तुमने कनेक्ट तो किया, बट 2 और 4 कनेक्ट नहीं किया तुमने। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड 2 4 था, बट तुम्हारा क्या है 135 है। क्यों नहीं आया पता है तुम्हें, क्योंकि तुमने यहाँ पे गलती करी है। ये देखो लाइन नंबर में गलती करी है, क्या है, तुमने इवन को कनेक्ट कर दिया, इवन थोड़ी था, तुम्हें कनेक्ट करना टेम्प को। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से जब भी अपना टेस्ट कर कोड लिखो ना, ड्राई रन करते रहो, ड्राई रन करके समझ में आएगी कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। देखो अभी पास हो गया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कोड, ठीक है। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो, एक बार ही हम ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पे क्या करें हम लोग, एक बार कोड को ट्रैवर्स करें ओ ऑफ एन में, है ना। और हम अलग से कोई स्पेस नहीं ले रहे, जो भी मेरी यहाँ पे चेंजेस हो रही है किसके अंदर हो रही है, किसके अंदर हो रही है बताओ, इट्स ऑन लिंक लिस्ट, ठीक है, इन प्लेस हो रही है। मतलब मैंने अलग से कुछ नहीं किया, इन प्लेस कोड चेंजेस कर रहा हूँ, सेम सेम लिंक लिस्ट में चेंजेस हो रही है। तो यहाँ पे तुम्हारी ओ ऑफ 1 की हो गई है, ठीक है। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऑल्सो वी नीड टू बी वेरी श्योर, जब भी हम ये करते हैं राइट, वी नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट द टेस्ट केसेस, कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये कौन से टेस्ट केसेस पे काम करेगा। इफ इट्स अ सिंगल नोड विल इट वर्क, इफ इट्स ऑन अ वैकेंट कोई है ही नहीं, नल नोड है, विल इट वर्क। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखो कि हमने इवन इवन रिटर्न कर दिया है, लाइन नंबर 36, तो ये यहाँ पे गलती हो सकती थी। तो वी नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट द टेस्ट केसेस वेल गिविंग द अप्रोच, कि क्या क्या टेस्ट केसेस में कोड पर्टिकुलर हैंडल करेगा, एंड इफ देयर आर एनी लिमिटेशंस वी नीड टू बी ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन दैट। So I hope you like this video, and if you do like it, please share with your friends. Please subscribe it and do comment if this discussion and the way we are approaching is it's giving is helping you somehow for the interviews. And going ahead, I'll post more videos on the design and more videos on the data structures too. So thank you.